Hey, another story time already. I was thinking कि मैं महीने में एक ही बार करूँगी और थोड़ा सा गैप दे के करूँगी. But then it's my fucking channel. I can do whatever I want. So welcome back to another story time. This is from my college time, and I for some reason you guys really enjoy my college lore, probably because मेरे सबसे ज़्यादा लौड़े मेरे college में ही लगे थे. But without further ado, so for the people who don't know, I went to Pune for college. I went to Symbiosis School of Economics. जब मैं जाने वाली थी तो मुझे पहले तो कोई आइडिया नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ, ठीक है? Because I was supposed to go to DU, but then there was some fuck up, and then I couldn't go there. And then my parents were like, "It's fine, you go to Simbi," because the course that I wanted to do, which was BSc in Economics Honors, amongst all my options, Simbi was the best choice. So anyway, I went. और जाने से पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था. पहली बात तो I had never left my house for more than 4-5 days. अगर मैं किसी ट्रिप पे गई हूँ तो उसके अलावा कभी भी नहीं. मुझे घर से दूर रहने की कोई आदत नहीं थी. हाँ, मैं थी थोड़ी सी बदतमीज़ वगैरह, बट लेकिन इतनी नहीं कि मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर रह चुकी हूँ. एंड I was still like very used to being, I don't know, sheltered. And I understand that I had like a lot of privilege growing up. I had people cook for me, I had people clean my stuff. मेरे को कुछ नहीं पता था कि खाना कौन बना रहा है, कपड़े कौन धो रहा है, क्या कोई कर रहा है. तो मेरे लिए moving out was like, I thought that moving out would be all fun and game. जो हम ऐसे YouTube पे तो मैं देखती हूँ लोगों के moving out vlogs वगैरह, वो लोग अपना घर सजा रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं. मैं सोचती थी, oh my god, great, I will do that too. So without thinking too much, मैंने सोचा ठीक है चले जाते हैं. और मैंने पैक क्या किया, कपड़े, शूज़, बैग्स और मेकअप. दैट्स ऑल. और मुझे लगा काफ़ी है. एंड द थिंग इज दैट फॉर सम रीज़न, well, not for some reason, probably because I acted like an adult when I was a kid. My parents thought that हाँ ठीक है, ये जो पैक कर रही है वही ठीक होगा. Like my parents didn't even give a fuck about what I was packing or where I was going to live. Subtle foreshadowing. Who I was friends with, nothing. They were just like हाँ ठीक है, इसकी 25 अप्रैल की फ्लाइट है, तो this is 25th April 2022, तो ठीक है ये फ्लाइट पकड़ेगी चली जाएगी. They didn't even come drop me to the airport because my brother is a pilot and he said that ठीक है मैं ले जाऊँगा. And my parents were like, you know what, it's fine, like हम एयरपोर्ट से को छोड़ने आएंगे, फिर हमें वापस घर जाना पड़ेगा. What's the point? Let's just say goodbye here. And I was like, okay fine. So to drop me at the airport, only 2 people came. Lakshita and Kritika, my best friends. और वो लोग वहाँ पे रो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे घर वाले तो मुझे छोड़ने भी नहीं आए. It doesn't mean they don't love me. It just means that they think I can handle shit. Well, I thought so too. So anyway, I'm at the airport and I'm like obviously crying because I'm moving out and all that. और मेरा भाई मुझे देख के बोल रहा है कि तू रो क्यों रही है? Don't worry. Plan was that I will be staying at my brother's friend's place for a month till I figure out all the stuff कि कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे सब कुछ रहता है. Because I had no idea. Zero. ठीक है, zero. And my brother had already talked to his friend and she was like, yeah, sure, send her to my place. Because they had gone to the same college, so they were really close. And then she was like, yeah, sure, send her to my place. Like, I would love to keep her and all of that. She was very sweet. So I thought, okay, fine, ठीक है, मैं जाके रह लेती हूँ. And then we land, I go to her house. और पहली बात तो यार जब आप किसी भी नई city, किसी भी नई country, like any new place, you don't understand कि इवन यहाँ से पास फार्मेसी कौन सी होगी. लाइक यू डोंट नो एनीथिंग. सो फॉर मी एवरीथिंग वाज सो फॉरेन. एंड एनीवे आई एंटर द हाउस एंड आई मीट हर. शी इज़ रियली नाइस एंड देन शी टेल्स मी दैट आई कैन स्लीप अपस्टेयर्स, देयर इज अ रूम एंड ऑल ऑफ दैट. माई ब्रदर हैड कम विद मी, ही हैड कम टू ड्रॉप मी. सो देन दे वेंट आउट एंड आई स्टेड बिकॉज आई had just moved. Okay, तो मुझे ऐसे बाहर जाके मेरे को, although मुझे in hindsight मुझे जाना चाहिए था to see where the nice things are, but लेकिन मेरा कोई मन नहीं था. I was really upset because I had left all my friends and that time I was also dating somebody. So I was like, I've left everything in that city and I've come here. I don't know anyone. I had zero friends. Okay, I knew one person. I knew one chick who I used to talk to online. And I was supposed to share a room with her, but because मेरा कोई confirm नहीं था तो मैंने उसके साथ भी room share नहीं किया. So I go to the room जो उसने मेरे को बोला कि ऊपर आप you can crash in this room. I go to that room and it didn't have a bed, okay, but there was a gadda and I was like, you know what, beggars can't be choosers. I'm staying at her place. I'll sleep on the gadda. Very very thin, okay. So I was like almost sleeping on the floor, but I was like, you know what, that's also fine. उस टाइम पे मेरे को इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था. I was just like already sad कि मैं आ गई. And April, May, June, Pune is very very, like it gets so hot. So I go to turn the AC on and there was no AC. So I go and turn the fan on and the fan only works on one speed, which is 1. एक की स्पीड पे चलता था वो फैन. लाइक एक तो मैं किसी और के घर आके रह रही हूँ और मैं घर आके उसको क्या बोलूँ, आपके रूम में एसी भी नहीं है, आपके रूम में पंखा भी नहीं चलता. तो आई डिडंट वांट टू बी लाइक एन अनग्रेटफुल बिच. तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, ठीक है. सो दैट नाइट आई चेंज्ड, आई अनपैक्ड और मैं लेटी हुई हूँ कमरे में. बट बिकॉज ऑफ हाउ फकिंग हॉट इट इज, आई एम स्वेटिंग, ठीक है. माई ब्रदर वाज स्लीपिंग ऑन द काउच जो नीचे था. सो बेसिकली इट वाज लाइक अ डुप्लेक्स हाउस जिसमें एक नीचे रूम था एंड देन देयर वाज अ लिविंग रूम जिसमें काउच था एंड देन अपस्टेयर्स देयर वाज जस्ट वन रूम जिसमें मैं रह रही थी एंड अ स्टोर रूम. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई कांट स्लीप बिकॉज मतलब आप सोचो कि मैं लेटी हुई हूँ, मेरा पसीना मेरा पिल्लो को गीला कर रहा है. वो सो बैड. फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ, ठीक है. एंड आई एम लाइक, लिसन,
just take a fucking shower. And then I take a shower and I feel so much better. मैं नहाने के बाद मैं लेटती हूँ, ठीक है, I sleep for an hour and then again I start feeling hot. So throughout the night I took like 5-6 showers just to get through the night. And in the morning I wake up and I go downstairs and my brother's all up and he's like all worried on call. And I ask him what happened. A very close family member of ours had died, so he had to fly back home. So the plan was that उस दिन मेरा भाई मुझे थोड़ा आसपास घुमा देता. He would have, because he had lived in Pune before, so he would have told me कि this is the nice place, this is how you go here, this is how you get, because I had no idea. But then he left. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मैं जिसके घर रहती हूँ मैं उसको अच्छे से जानती भी नहीं थी. सो वील कॉल हर एक्स, ठीक है. शी सीम रियली स्वीट एंड आई एम श्योर शी स्टिल इज. तो उस दिन मैं बाहर निकलती हूँ, ठीक है, टू एक्सप्लोर. अब मैं बाहर तो निकल चुकी हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मैं किस एरिया में हूँ. एंड देन आई थॉट दैट बिकॉज आई एम स्टेइंग हियर आई शुड ऑल्सो गेट डिनर. एंड आई ऑर्डर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी एंड फॉर एक्स. एंड शी इज ईटिंग विद मी एंड शी आस्क्स मी अ few things that, how far is your college, what's your plan, like are you going to shift there or are you going to stay here and all of that. And I tell her that no, I would like ideally want to move somewhere near my college, but I'm still like I'm yet to figure that out, because the thing is that you need brokers, you need a lot of contacts to get houses. ऐसे थोड़ी अगर मैं आपको बोलूँ कि कल जाके उस शहर में घर ढूंढ लो, कैसे ढूंढोगे आप भाई? मैं तो जानती भी नहीं थी कि शहर का पूरा नाम क्या है. तो मैंने उसको बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा फिगर आउट करने के लिए. मीनवाइल मैं ये हफ्ता कॉलेज जाऊंगी टू सी एंड टू मीट न्यू पीपल सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इफ देयर आर एनी अवेलेबिलिटीज इन पीजीज और व्हाटएवर. सो आई that was my first hint that she wants to know what my living situation is, ठीक है. But prior I had discussed with her that I would at least take a month to find a new place, क्योंकि पहली बात तो मेरा कॉलेज चल रहा है. It's not that I had time only to figure out where I'm going to live. And second, I wouldn't stay at her house long. मेरी क्लासेस सुबह 9 बजे से लेके 4-5 बजे तक होती थी, and then I would just stay near college, और मैं रात को घर आ रही थी. So this was the scene. So 2-3 days go by and I make her food also. I make her Maggie, like जो भी मुझे आता था बनाने के लिए, just so that's the most I could do from my end, because मैं थी तो एक बच्ची ना. Meanwhile I hang out with a group of girls and they were very sweet. They were just not the kind of people I'm used to hang out with, and they were, how do you say, they're very innocent, and well I wasn't. So hanging out with them, I was grateful, but I didn't have any fun. Okay, I'm being honest. मैं बस ऐसे बैठी हुई, और अगर मैं आपके साथ 100% ऑनेस्ट हूँ तो मैं ऐसे बैठी हुई सोच रही थी कि यार अगर यहाँ के सारे लोग इतने ही लेम हैं तो मैं कैसे, हाउ विल आई फाइंड रियल फ्रेंड्स. लाइक अभी तो मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ कि हाँ मुझे आपके जोक पे हंसी आ रही है, बट आगे जाके मैं नहीं कर पाऊँगी ये बात प्रिटेंड. तो दिस मेड मी इवन मोर सैड दैट अगर मैं इन लोगों से पूछ भी लूँ कि ये लोग कहाँ रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे नहीं रहना इनके साथ. लाइक इफ आई एम लिविंग विद समबडी आई वुड लाइक टू live with someone I would have fun with. But in the meanwhile I had gotten a few contacts of PGs जो वहाँ पे थे, जहाँ पे सारे हमारे कॉलेज के बच्चे रह रहे थे. तो मैं कॉलेज के बाद पैदल चलती थी उन PGs की तरफ, गूगल मैप्स पे डालकर मैं उनको पूछती थी कि हाई इज़ देयर अवेलेबिलिटी, क्या आपके रूम. एक मुझे जो बात पता थी वो थी कि मुझे AC रूम चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं मर तपर तो रही थी एक हफ्ते से. तो मैं उनसे पूछूँ कि आपके पास कमरा है, क्या आपके पास कमरा है, और वो सब कुछ. एक तो बहुत एक इतना सा कमरा वुड बी फॉर 15-20,000 रुपीज़, ठीक है. और मुझे लगा था अगर मैं अपने पैसे इतने दे ही रही हूँ तो फिर मुझे कम से कम AC तो वो भी अलाउड नहीं था. फिर उसके बाद आपको 7 बजे के बाद बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था. भाई इससे ज़्यादा फ्रीडम तो मेरे अपने घर पे है. तो मैं उन सब चीज़ों की वजह से आई वाज लाइक इट्स फाइन, मेरे को ये जगह नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए. एंड इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है. इट्स लाइक मेरे सर पे एक स्टेबल छत नहीं है. सो दैट्स रियली अनोइंग. एंड द थिंग इज दैट आप ब्रोकर्स को बताते हो, उनको भी 1-2 दिन लगते हैं घर ढूंढने में, ये करने में, वो करने में. तो आई रिमेंबर दैट now if 25th go I started staying at X's place. Now this is, imagine it's 5th, okay, so 10 days have gone by, and she asks me, she's like, so have you started looking for flats? And I told her that yeah I've started looking, and 3 days later I'm going to see a few PGs and I'll like probably choose एक उनमें से and I'll move. And she was like yeah okay good. And then I was like okay भाई तू सीधा बोल ही दे कि तू मेरे को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है. And in my defense I wasn't doing anything wrong. Like I was literally not doing, I wasn't even bothering her. मैं सुबह उठती थी 5 बार नहाने के बाद रात को, और मैं कॉलेज निकल जाती थी, और फिर मैं 5-6 बजे वापस आती थी. I would like order dinner. I had no friends, nobody would come over and I don't know disturb her peace. So I didn't know कि why she didn't like me. And then anyway, so it's 5th of May for example, और मैं अपने रूम में हूँ ऊपर, and I'm like so upset. And the guy that I was dating that time, he was asking me on call that क्या हो गया, तू इतनी परेशान क्यों है, तू तो ऐसे एक्टिंग करी जैसे पता नहीं क्या ही हो गया. And I cut the call and I'm just like oh my god, is everyone around me fucking stupid? Like do they not understand how hard it is? And then my parents call me and they're like hi, how's it going? And I'm like shit, why didn't you guys get me settled?
बिकॉज जितने भी लोगों से मैंने कॉलेज में बात किया है उनके तो पेरेंट्स अभी तक हैं यहाँ पे, लाइक देर हेल्पिंग देम मूव, देर हेल्पिंग देम इंस्टॉल ROs, ACs, coolers, whatever, and you guys don't even know where I'm staying, like you don't know what course I'm doing. And then my dad was like, it's fine, you find a flat and then you move in alone only. And I'm like, I don't want to move in alone. First of all, what do you mean find a flat? Like मेरे को नहीं पता कि कैसे घर ढूंढते हैं, ये चीज़ें तो नहीं सिखाई मुझे कभी स्कूल में. एंड आई वॉज रियली पिस्ड एट देम. एंड आई रिमेंबर उनसे बात करते करते मेरे कमरे का जो पंखा एक स्पीड पे चल रहा था वो भी बंद हो गया. एंड दैट रियली गॉट टू मी. एंड बिकॉज वो रूम ऊपर था, वो टॉप पे था, तो उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी थी. मैं नीचे आती हूँ एंड आई रियलाइज कि नीचे फ्लोर में बिना AC के भी ज़्यादा ठंडक है. सो आई आस्क्ड एक्स दैट कैन आई स्लीप ऑन द काउच टुनाइट, एंड शी सेड या व्हाट हैपेंड. एंड आई सेड दैट द फैन्स नॉट वर्किंग एंड इट्स वेरी वेरी हॉट, लाइक आई प्रॉमिस आई वोंट मेक एनी मेस, I just need to get a night's sleep because I have an 8 a.m. class tomorrow. And then she was like, okay. So I bring my pillow and I sleep on the couch, okay? And the next morning I realized that I am literally couch crashing at 17 at some random girl's place, and I should not do that. I need to literally grow up and find a place. तो उस दिन से मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ, मैं सीधा ब्रोकर्स के साथ जाती हूँ और मैं दिन के 10 फ्लैट PG इधर उधर फलाना ढिमकाना पूरा देख रही हूँ. एंड देन आई कम बैक होम, आई मीन नॉट माई हाउस, दैट गर्ल्स हाउस. बाय द वे शी वॉज वर्किंग हियर, सो हर फैमिली वॉज इन अनदर सिटी, और वो यहाँ पे रुकी हुई थी अकेले. तो वो मेरे से पूछते हैं कि सो हाउ इज हाउस हंटिंग, आर यू मूविंग नाउ? दिस इज 12 days later, and I'm like, yeah, I'm moving, मैं निकल जाऊंगी 1-2 दिन में, don't worry, like I won't be more of a problem. And then I go out for dinner again. This is like my 13th dinner alone. और मैं वापस आती हूँ, so I see that she's called somebody over, like her friends, and then she comes up to me and she's like, hey listen, these people are gonna crash on the couch, so like you can either sleep upstairs, or if you have a friend's place you can go to, that's also fine. And I'm just like, I don't know anybody here, like I know no one, like including you, I know 2 people, so I cannot stay at somebody else's place. But I don't tell her anything. I'm like, oh yeah, sure, no problem, I'll sleep upstairs. And I'm just sitting in my room all drenched in pasina with 5,000 mosquitoes biting me. And I remember I was crying so hard, and I just kept thinking that, God, what's wrong with me? Why didn't I figure these things out before I came? Like I really thought that, if I told somebody that I'm staying at your place for a month, that would mean like I'm staying at your place for a month. किसी तरीके मैं वो रात निकालती हूँ और अगले दिन मैं फिर चली जाती हूँ, और एंड आई टेल हर दैट लिसन, आई एम 100% गोइंग टू फाइनलाइज द फ्लैट टुडे, सो प्लीज डोंट वरी. टू विच शी रिप्लाइज, या प्लीज, लाइक माई फ्रेंड्स वो वर yesterday and they were asking कि who's this girl who's staying upstairs, and I'm like, बहन जो, तो मैंने कौन सा तेरे दोस्तों के खाने में उल्टी कर दी है, मैं तो ऊपर जाके सो गई थी ना, लाइक whatever. उसका घर है भाई, उसको जो करना है करे. इट्स नॉट लाइक आई वाज पेइंग हर रेंट. तो मैंने उसको बोल दिया कि नो प्रॉब्लम, मैं आज कुछ ना कुछ फाइनल करके आई विल जस्ट मूव आउट फॉर श्योर. एंड दिस इज लाइक द 15th डे, ठीक है. सो आई एम लाइक स्कैर्ड बिकॉज मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मूव आउट करूँगी, मुझे ये नहीं पता कि क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अगर आपको कहीं की किसी के फ्लैट में या किसी के PG में रहना होता है. आई विजिट अ लॉट ऑफ कोलिंग प्लेसेस, एंड देन फाइनली आई फाउंड वन जिसने मुझे बोला था कि यू कैन मूव इन फ्रॉम द 18th एंड दिस इज़ द 15th. सो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, परफेक्ट. फिर मैं उसके बाद अपनी जो मेरी एक दोस्त थी, मैं उसके PG पे जाके बोलती हूँ कि आई एम मूविंग समवेयर क्लोज, एंड शी वाज आल्सो हैप्पी फॉर मी बिकॉज शी लाइक वी हैड बिकम लाइक not friends but like whatever, like acquaintances. And she said, I'll help you move out, and I was like, wow, that's like the best thing anyone's ever done for me. So I said, sure, 17th ko I'll pack all my stuff. And then she said that you can come stay at my PG for a night because usually they don't allow outsiders to stay in somebody's room. एक रात के लिए you can like get a permission. तो उसके बाद मैं कॉलेज जाती हूँ दोपहर में after lunch, and then I'm called to the admin office. Okay, so I go to the admin office and they're like, listen Pianchi, you're not allowed to write exams for the first semester. And I'm like, what? Why? And then they said, because you came here, you collected your ID card, and then you showed up to class for like 3-4 times. उसके बाद आप कभी थे ही नहीं. तो I tried explaining them my situation कि मैम मेरे घर पे छत नहीं थी. Oh my, I mean मेरे सर पे छत नहीं थी, मेरे पास खाने के लिए मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल एक अनजान शहर में आ गई हूँ, प्लीज़ हैव मर्सी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ. And they're like, no, we don't care. And then apparently I was supposed to fill like an examination form that also I hadn't filled because मैं अपने घर ढूंढने के चक्कर में इतने टाइम कॉलेज ही नहीं आ रही थी, और मुझे नहीं पता था भाई कि एग्जाम देने के लिए भी एक फॉर्म भरना पड़ता है. स्कूल में तो मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था. सो आई टेल हर दैट I don't know, like I didn't see the email or anything. So she was like, yeah, that's your fault. And I guess that was my fault. Can you not excuse people in the first semester? Like that is when they're even trying to figure out कि उनको आपके भेड़े कॉलेज में रहना भी है कि नहीं. Regardless, they just flipped me off and they were like, you know what, bitch, whatever, you come to college, you don't come to college. आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स अभी नहीं दोगे, आप वो एग्जाम्स अगले साल दोगे. सो दैट इज़ व्हेन मेरी बैकलॉग की समस्या शुरू हो गई. तो मेरे पास 5 एग्जाम्स थे जो मेरे
कैरी ओवर हो गए थे सेकंड सेमेस्टर के. दैट मीन्स कि मुझे सेकंड सेमेस्टर के 5 एग्जाम प्लस मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के 5 एग्जाम साथ में देने पड़े थे. सो आई वॉज रियली अपसेट. ठीक है, मैं रोने लग गई थी. एक तो मुझे क्योंकि समझ ही नहीं आता, इतनी मुश्किल से मुझे एक फ्लैट मिला था, फिर आप मुझे कह रहे हो कि आप मैं कॉलेज आऊँ ना आऊँ लन का फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरे पास कोई एक भी कोई दोस्त है. इसके बीच में आई हैड मेट प्रथम एंड लाइक हिज ग्रुप, बट I wasn't friends with them. I was still friends with this other girl जिसके मैं PG पे रहने वाली थी. Let's call her R. I hardly know people. I don't even know if they like me because for some reason here people don't like me. That's so foreign to me because usually I'm such a people's person. I talk so much that I'm able to make friends very easily. And I'm like मैं जिसके घर रह रही हूँ अभी वो मुझे घर पे नहीं रहने देना चाहती. मैं जहाँ आई हूँ कॉलेज के लिए वो भी मेरे को अलाउ नहीं कर रहे, और अब मैं बैठ के खाना अकेले खाऊँ और मैं वापस 40 मिनट ट्रैवल करूँ अपने कॉलेज से उस घर तक. एंड आई वॉज गेटिंग लाइक अ लिटिल बिट मनी फॉर माई ओन अलाउंस, जिसमें से 90% पैसा मेरा इधर उधर आने जाने में, ब्रोकर से मिलने में, इनको देने में, कंसल्टेशन चार्ज देने में, ये सब. तो मेरे पास लिटरली अपने लिए पर मील 50 रुपये बचते थे, जिससे मैं एक डोसा खाती थी जो मेरे कॉलेज के बाहर मिलता है. एंड फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम SSC यू प्रॉब्ली नो लाइक शाउट आउट टू गणेश डोसा वाला. और इस टाइम तक 5 बज गए. ठीक है, तो मुझे 40 मिनट दूर ट्रैवल करके दोबारा उस घर जाना था. सो आई बुक एन ऑटो बाय द वे. ठीक है, कैब्स वर अ लग्जरी in college. So when you move out, like autos were the thing. मैं तो पैदल भी जाने को रेडी थी. तो मैं ऑटो करके वहाँ जाती हूँ and I see that all my stuff is outside. All of my stuff is outside her house. मेरा एक सूटकेस ऐसे बना हुआ था और उसके साइड में जो साइड में एक और बैग लेके आई थी वो बैग ऐसे पड़ा हुआ था ज़मीन पे. ठीक है, and I am just like what the fuck. I was moving out. You don't have to throw me out like that. So I knock and there's no one. I ring the bell and there's no one. So I call her and I'm like, hey, I found my stuff here. And then she was like, hey, I'm a little busy. I'll call you back. तो मैं उस घर के बाहर बैठी हूँ काले इतने बड़े भेंदड़े जितने सूटकेस जो मेरे जितना बड़ा है और एक बैग के साथ. एंड आई एम लाइक व्हाट. एंड दिस इज 6 PM in the evening. Okay, I find a note on the ground. I pick it up and she's like, hi, so because of some emergency I have to go back home. I won't be here for like 4-5 days. इसलिए I thought that I would just pack your bag and keep it outside because मैं तो यहाँ पे होंगी नहीं, तो फिर आप अकेले यहाँ पे कैसे ही रहोगे. So yeah, here it is. Apparently, which I still don't believe कि वो अपने घर वालों के पास गई होगी. तो वो चली भी गई होती तो भाई तू मुझे चाबी दे जाती, मैं रख जाती चाबी तेरे कारपेट की. आई एम जस्ट सिटिंग देयर होल्डिंग दैट नोट एंड आई एम लाइक भाई मैं कहाँ जाऊँगा. So I call her again and I'm like, is there a spare key for the night? Because I said I have no place to go to, and she was like, oh, I took the key with me, but didn't you tell me that आज आपका finalize हो जाएगा सब कोई PG. That's why I personally like myself packed your bag and I was like, it's fine, आज रात तो फिर ये PG में shift हो ही जाएगी. And I said PG फाइनलाइज हो गया है बट लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन बाद ही शिफ्ट हो सकती हूँ. सो शी वाज लाइक ओह दैट सक्स मे बी यू कैन क्रैश एट अ फ्रेंड्स, आई डोंट नो. ओके लिसन आई एम ट्रैवलिंग ना, सो जस्ट टेक्स्ट मी व्हाटएवर इन केस यू नीड एनी हेल्प, जस्ट टेक्स्ट मी. एंड आई वाज लाइक व्हाट, इन केस आई नीड एनी हेल्प आई टेक्स्ट यू. तूने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं एक दिन तेरे सोफे पे सो गई थी. तो आई एम लाइक इवन इफ आई डाई यू आर द लास्ट पर्सन आई विल कॉल. एंड आई एम नॉट किडिंग फॉर लाइक 15-20 मिनट्स आई एम जस्ट सिटिंग ऑन माई सूटकेस क्योंकि मैं उसके घर के बाहर थी. एंड इट वाज लाइक अ लोकेलिटी. तो बेसिकली बहुत सारे सेम घर ऐसे साथ में अटैच थे और हमारे राइट वाले घर में कुछ बैचलर्स ही रह रहे थे क्योंकि एक और सिम्बी कॉलेज उस सोसाइटी के बहुत पास था. एंड दे सी मी सिटिंग ऑन माई सूटकेस एंड दे आर लाइक हे वी आर थ्रोइंग अ पार्टी, यू वांट टू कम. एंड आई एम लाइक नो एक्चुअली I don't want to. And then they were like, you want to keep your stuff inside, what happened, you got locked out? And then I said yeah, like I got locked out. भाई मैं अब किसी और को थोड़ी बोलूँगी, एक्चुअली मैं किसी सोए पे सो गई, उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया. So then I remember there were like these 2 guys who helped me. They tried opening इस ex का घर, उसको लगा था बिना चाबी के खुल जाएगा बट लेकिन नहीं खुला. तो उन्होंने मुझे बोला कि it's fine, you come inside and you can figure out something from here. तो मैं किसी रैंडम लोगों के घर पे बैठी हूँ जो पार्टी थ्रो करने वाले हैं एक, and there are like a lot of people coming here and there. और मैं अपने सूटकेस के साथ ऐसे बैठी हूँ. I felt like the biggest loser on this planet and I didn't know who to call. So I thought, you know what, in this situation I can book a hotel. Now a lot of people must be thinking कि इसने पहले ही होटल क्यों नहीं बुक कर लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. ठीक है, आई डू नॉट लाइक आस्किंग माई पेरेंट्स फॉर मनी, आई हैव नेवर लाइक्ड इट. तो मुझे लगा था कि जो भी उन्होंने मुझे अलाउंस दी है फॉर दिस मंथ आई शुड बी एबल टू सर्वाइव ऑफ दैट. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बुक अ होटल which was like at least for like 8 to 10K. Then using my last minimum balance जो बैंक में बचा था, I was like, you know what, I just this is the only thing I can do. I can only book the hotel. But if I fucking book the hotel, I wouldn't even have the money
to pay the cab to get to the hotel. So that was it, and I was too mad at my parents to call them. So I call R and I ask her if I can crash at her PG tonight instead of on 17th night, because I have no fucking place to go to. And then she's like, okay, let me ask my warden. She asks her warden and he's like, she can only stay one night, so if she stays tonight, then she can't stay on, like, she can't stay any other night. And then I was like, it's fine, no problem, like right now I just need to know how to survive the night, and then later on I'll figure something out. So R, she like hears me crying and she was like, you know what, let me come there and we'll come here together. That was so sweet of her. She books an auto, she comes till here, and then I book a cab, and then I go to her PG, and then that night I spend the night at her PG on the floor, obviously, because there was no other space. And I had no tears left to cry. I wanted to go back home. I wanted to go back where I came from. मुझे नहीं रहना था यहाँ पे. तो अगले दिन मैं सुबह उठती हूँ, मेरे कॉलेज जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे को एग्जाम्स तो वो देने दे नहीं हुए थे. तो मैं उस पीजी में जाती हूँ जहाँ पे मेरे को मिल गया था. And I ask them if I can just stay from today itself because I have no other place to go to, and I tell them the whole situation, and they're like, sorry, हमने आपको 18th बोला था, तो मैक्सिमम आप 17th को शिफ्ट हो सकते हो, बट 16th नाइट विच इज टुनाइट सम अदर girl has to move out from that room, only then we can give you that room. And then again I had no place to go to, so I tell R that this is the scene, like I'll probably sleep on the road because I'm homeless. I was literally homeless. And then she said that, listen, let's figure something out. Let's just, when the warden comes to, check the room at night, you just hide in the closet or something, और आज रात तू यहीं रुक जा. तो मैंने बोला ठीक है. लाइक दैट्स द ओनली थिंग आई कुड डू. मैं और क्या करती. तो मैं उसके पीजी में हूँ, ठीक है, और हमें पता चल गया कि 9 साढ़े 9 तक वार्डन आ जाती है चेक करने. तो आई लिटरली पुट माई सेल्फ इन अ क्लॉजेट. और पीजी के क्लॉजेट मतलब बस आप समझ लो जैसे वो लोहे की अलमारी होती है ना, ऑलमोस्ट वैसी. और मैं उसमें ऐसे करके बैठी हूँ. आई कांट लाफ, आई कांट लाइक इवन ब्रीथ टू लाउड कि उसको पता ना चल जाए. और वार्डन आ रही है, कम से कम पता नहीं उस वार्डन ने 5 मिनट लगा दिए. वो इनका वॉशरूम भी चेक कर चुकी थी कि तुमने पानी का टैप खोल के रखा है, तुमने मोटर यहाँ से ऑन करी है, तुमने वो किया है, वो किया. शी डजंट सी मी दैट नाइट, बट शी सीज माई सूटकेस. वी थॉट दैट उसने ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया है सूटकेस पे या जो भी, और वो बस ऐसे देखती है और फिर वो आर को देखती है ऐसे, एंड देन शी लीव्स. सो वी टुक इट ब्रो, यू आर लाइक ओके फाइन व्हाटएवर. वो चले गए हैं यहाँ से. कम आउट ऑफ द क्लोजेट एंड वी आर सिटिंग एंड आई एम जस्ट crying, okay, and then I was like trying to console me that it's fine, you'll find a new house. And then the warden enters again, and then she sees me on the bed, and she sees me like she literally catches me in the middle of crying, and she's like, तुम यहाँ से कैसे आई, अभी तो मैंने सब चेक किया था, ये वो. तो मैंने बोला कि मैं तो साथ वाले रूम में थी, उनका वॉशरूम यूज़ करने गई थी एंड ऑल दैट. बेसिकली वो मुझे पकड़ लेती है. एंड शी इज़ लाइक, नहीं नहीं तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से निकलो. और मैं उसे पूरी कहानी बताती हूँ कि मैम मेरे पास कहीं भी जाने को जगह नहीं है. आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्लाई कि अगर मेरे को आज रात को कुछ भी हुआ तो वो आपके सर पे होगा, क्योंकि आप एक 17-18 साल की बच्ची को रात के 10 बजे यहाँ से निकाल रही हो. एंड देन शी इज़ लाइक, मुझे 500 रुपये दो. ये कैसी भीख हुई, वो भी तुम एक बच्चे से ही मांग रहे हो. एंड देन शी इज लाइक, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना, यू हैव टू पे मी 500 रुपीज. एंड देन दिस वाज नो रूल, ओके, बट आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, टेक 1000 रुपीज एंड जस्ट डू नॉट बॉदर मी फॉर द नाइट. एंड देन समहाउ आई सर्वाइव अनदर नाइट. अगले दिन सुबह आई मूव टू द अदर पीजी. ऑल्दो उस पीजी में से भी मेरे को 15 दिन बाद निकाल दिया था, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैड कम ओवर एंड दे स्टार्टेड स्मोकिंग इन द रूम, और उनको पता चल गया था. तो वार्डन इन दैट वन, शी कॉट अस एंड शी वाज लाइक, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक. एंड देन आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, माय फ्रेंड्स हैड कम. एंड शी इज लाइक, व्हाट, यू आर नॉट इवन अलाउड टू गेट फ्रेंड्स. एंड आई एम लाइक, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, सब ये भी मेरी गलती थी. अब से मेरा की कार्ड डिसेबल कर दिया था, और रात के 10 बजे मैं वापस आ रही हूँ अपने रूम में पीजी के टू जस्ट स्लीप. खाना खाने के बाद तो मैं देख रही हूँ कि मेरा की कार्ड डिसेबल है. ना लाइक, व्हाट द फक. मैं गार्ड के पास जाती हूँ, उसने गार्ड को भी मना कर रखा था कि इस लड़की को मत आने देना. एंड आई सेंड हर दीज मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इस पीजी से भी निकल के देन आई जस्ट फ्लाई बैक होम फॉर अ वाइल, जब तक पीछे से ब्रोकर्स और घर ढूंढ रहे थे. एंड देन इवेंचुअली आई फाउंड अ डिसेंट प्लेस जहाँ पे मैं कम से कम 4-5 महीने रही थी बिफोर शिफ्टिंग टू अ फ्लैट. एंड दैट वॉज वॉलंटरली. Nobody had kicked me out. So all in all, I got kicked out twice. First time तो मुझे नहीं पता मेरी क्या गलती थी. Second time for stupid shit because I was like, yeah sure. I was so desperate to make friends that I was like, हाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे तुम वेप कर लेना, यहाँ पे सिगरेट कर लेना, जो भी करना है, दारू पीनी है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे घर आके पियो. तो क्या हुआ अगर मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ. नहीं, मेरे से बड़ा भोंदड़ा इंसान, मतलब ओह, मुझे अभी भी सोच के गुस्सा आता है. एंड yeah, that was it. I don't talk to R anymore because, well, we got into a huge fight and then she borderline wanted to bully me, but whatever. I found my gang later on. While listening to me, a lot of you guys might be thinking कि हाँ तो तुम किसी और के घर जाके इतना नहीं रुक सकती या जो भी. If somebody is in need and if somebody wants to stay at my place, I would sleep on the floor and let them take the bed. And that's it for the story time. For all the people who are trying to move out, please figure out all your shit before you even try
to get out of your city. So if we go on in order, पहले मैं उस ex के घर रह रही थी, उसके बाद this PG that also kicked me out. Then I found a PG जहाँ पे मैं 4 महीने रही थी, and by उन 4 महीनों में I had made all my friends, like all Pratham, Elena, like Paridhi, everybody. And then Elena and I got a flat जिसमें से भी हमें धक्का मार के निकाल दिया था क्योंकि अलीना के बर्थडे में हमने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया था पार्टी करके. एंड देन वी मूव टू अ फ्रेंड्स फ्लैट हु आस्क्ड अस फॉर रेंट फॉर 12 days क्योंकि हम उसके घर पे रह रहे थे. एंड जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, शी हैड अनदर हाउस जस्ट एम्प्टी इसी सेम सिटी में क्योंकि उसकी जो फैमिली वहाँ पे रह रही थी, दे हैड मूव्ड आउट एंड शी वॉज ऑलरेडी स्टेइंग देयर बिकॉज ऑफकोर्स वो तो उसी की फैमिली का पार्ट है. और मैं और एलिना एक रूम शेयर कर रहे थे एंड शी वॉज लाइक कि आपको मुझे 12,000 रुपये देने हैं इस कमरे के. And she was a really good friend and you've seen her in my vlogs. And then lastly, Elena and I got another flat जहाँ पे हम over 1 साल रहे थे. And yeah, now I need to announce who is winning the giveaway. And I'm going to choose 2 and I'm going to make chits because I cannot choose myself. The first winner is Ridhima Singh. I'll put a screenshot of your comment here. And the second one, Trisha. Congratulations. You guys please send me a message on Instagram, okay? And then we will figure out everything from there. I have a lot of skincare, makeup, clothes. If you guys want, you can take it all. Hopefully God gives me a lot of opportunities to do these giveaways and I just want to give back all of it to you guys. Thank you for loving my story time so much. Thank you for loving me and I'll see you in my next one. Bye. Take care.